स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्या जानने वाले हैं, ऑर्डर्स पे देखेंगे कौन सा ऑर्डर्स एक यूजर ने किया है और उसको डिस्प्ले करूंगा मैं एक यूजर स्पेसिफिक यूजर का दिखा रहा हूं तो मैं फिल्टर आउट करूंगा। आपको क्या करना है, आपको एक एडमिन के लिए सब कुछ दिखाना है, जितने भी यूजर्स ने ऐड किया तो उस केस में बस एक फिल्टर हट जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। तो वही इस्तेमाल करूंगा मैं JW पेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं डाटा टेबल का यूज नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो jQuery डाटा टेबल का भी यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखिए जो आपको पसंद है। मेरे को JW पेजर ज़्यादा अच्छा लगता है तो उस पर काम करेंगे। इससे पहले क्या करूंगा मैं, एक हमारा अकाउंट व्यू मॉडल है, ये यूजर और ये सब चीज़ें इसको मैं हटा देता हूँ। यूजर डिटेल्स और ये सब चीज़ें, बाय द वे एक चीज़ मैं करना भूल गया था, मैंने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं डाला है, तो आप वैलिडेशन को डाल दें, आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने आपको पता है, मैंने ऑलरेडी वैलिडेशन का वीडियो बनाया, तो मेरे को करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया। दैट्स अदर थिंग। Now we will be talking about the orders one. So I think I will be creating this in the user controller only. We can have a separate areas under controller under. We can create a orders controller as well. But I think like the users details we are displaying, so I can do in the user controller only. I will be creating a HTTP get here. By the way, I'm authorized. I have not authorized any controller and these things. These things you have to keep in mind. Which one you should authorize or which one you should not authorize. By the way, user listing, I think user all the details will be listed. So I think these things should be an authorized controller. Public assign task. This will be an action result index. Orders index. Let's give an order index. And what I will be passing here, I think I will be passing here a user ID. I can pass a user ID or I can pass like user email as well, whatever it's fine for me. Find by ID. Find by name, you should not do that because name will not be a unique one. So I would suggest you not to do that. Let me return a partial view in this case, and it will be I will be writing here partial view. I think uh, orders index, it will be fine. And here I can pass what I can pass here model. By the way, model is not defined, so I have to create a model as well. Let's create an order view model. Let's go under user view models, and let me create one more model here. Control D, user order view model. So what it will have, it will have a user ID, and it will, what you can do, it will have a user ID and it's a status. It will add all the model orders, and it will have, let's do this. I think it will have a enumerable of order. It will have a, why I'm doing the enumerable, because I want orders will be, you can say like it can be many in number, not a single order. I need the status as well to filter out using this. And I think I need an application instance as well, I think so. Application user like this, let's do this one as well. I think we need it. If we don't need it, that's the other thing we can do later on, like we can remove it later on. I need the pager as well. So these are the things that we need. I don't think application user I need it, because I will be filtering the orders using the user ID. And then what I can do, I have to filter the name as well. Name where? I don't think name I have to filter out. So I don't think this thing I need it. So let me remove this thing. I don't need this application user instance. I think so. I'm not sure, but I think so. I don't need it. Now let me pass the model as well here. So what I am doing, I am getting the user ID here. I will pass the user ID. From where I will get the user ID? Thing user ID, I will be, when I will click on, if you see, let me open that as well. Where is that? Where is this? Yeah, I think in user details. If I click on this order tab now, so I will send the user ID as well as of this user. So uh, I think I will get the current user for now, because whosoever is logging, he will only check that user ID. So I can do that. Okay. User ID, I will get the user ID, and then after this, what I will be doing, I think I already did that. I think I did this in this dashboard controller. I remember user manager dot users dot first dot default like this. User manager dot users dot as curable, I think so. I would need the await here.
when I will be needing the aware, I will be using this. So model dot user id, user id is coming from where? User dot, where is the user id? User id. Model dot orders, I need model dot orders. Model orders, I have to, what I will be doing, I will pass the user id and these things. I don't think user, this as curable also not needed. Yeah, seriously, this one is also not needed. I don't need this because user ID I am already passing that. If I am not passing the user ID, that's the other thing. Like I can find out from the current user, like which is being logged in. That also I can do. It totally depends upon me what I am doing here. Let me put in a wait and then I will. I'm not create. I didn't create any service kind of stuff. Okay, so I need a service something so service sub service also I need it. Okay, let me use that service somewhere. I have the service here. User service, I have this shared service. Why don't we use the shared service? Let me create a user service. I think user service will be fine. Add new class, private read only. Now what I have to do, I have to search the orders. Okay, I have to create the instance of this as well. Similar way. Okay, control get control. So now what I can do, I can take this user service dot search orders, and here I will be passing the user ID because I need the user ID. I need the status as well. Okay, so I need the status as well. So I think model dot status page also I am passing here, and I will pass the p as well, and record size also I need this. So I will be passing the records as well. By the way, I want to display 10 records here, so I will be passing the 10 records. Similar ways, now I need the total records as well so that I can display the pager as well. One thing I have to do, I have to use a jQuery for pagination. I can't use the normal one. So that, let me do that as well. I will be doing that as well. Showing here in this video. User service dot, here I will be doing search orders count. Here I will be passing user ID and the status. Generate method, generate method. Now I've done with this generate method. Let me work on these things. Async task, and I think it should be an integer. These are the things that we will be covering. So how I will be finding the orders? Let's do the orders as well. db dot orders dot where. I can do this way, or dot similar data dot entry x tends to x dot order items dot to list, because I will always pass the user ID. The user ID cannot be a null. Now let's talk about the status one, because status can be a null. String dot is null or empty. If it's a status, so what I will be doing, I will be filtering out with the status one as well. So orders equal to orders dot, okay, my bad. I didn't add any users list, user instance, so I can't use the user ID user as well. Like I have to create a user here. So what I will be doing here, what I have to do, let me talk about that as well here. Orders, when you go to orders here, orders में जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा एप्लीकेशन यूजर का, ताकि आप एप्लीकेशन यूजर के साथ भी खेल, और वो मैंने नहीं किया तो मेरी गलती है, तो मैं बाद में देखूंगा। एक मिनट, ये वेयर वाला आ क्यों नहीं रहा है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। टू लिस्ट असिंग नहीं करना, एक्स्ट्रा स्टेटस हो जाएगा। स्टेटस क्या कर दूंगा मैं, टू लोअर कर दूंगा, स्टेटस डॉट टू लोअर, ठीक है, डॉट टू लिस्ट कर दूंगा मैं इसको। और मैं चाहूँ तो आई थिंक इसका यहाँ पे भी वेयर कर सकता हूँ, वेयर में अगर कर दूँ, मेरे ख्याल से टू लिस्ट असिंग कर रहा था, उसके वजह से कुछ ऐसा इशू था भाई। एक मिनट रुको, असिंग कर रहा हूँ, टू लिस्ट असिंग में भी काम करेगा, पर मैं अवेट नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसके वजह से प्रॉब्लम थी। ऑर्डर डॉट करूंगा, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर्स हो गए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ ऑर्डर का एक्सटेंड्स टू एक्स डॉट आईडी से मैं कर देता हूँ। डॉट रिकॉर्ड साइज डॉट टेक वाइल क्या होता है सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है लिंक्यू वाले सीरीज में, तो वो फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से इसी तरह से मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ वाले में रिटर्न ऑर्डर डॉट काउंट असिंग कर दूंगा, तो इस तरह से मेरा ये सर्च ऑर्डर्स का भी और इसका भी ये बन जाएगा। अब इस वाले को डिस्प्ले करना है मुझे, डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे एक तो ऑर्डर इंडेक्स का एक व्यू बनाना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर्स वाले को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वो मैं डाल दूंगा माइग्रेशन करके।
अभी यहाँ पे जाऊँगा व्यूज़ वाले में, यहाँ पे कहाँ पे यूज़र वाला है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यूज़र वाला इंडेक्स वाला है तो इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, यूज़र डिटेल्स वाला कॉपी कर देता हूँ मेरे ख्याल से। ये वाला मॉडल नहीं आएगा मेरा, को मॉडल कौन सा आएगा मेरा, ये ऑर्डर यूज़र ऑर्डर व्यू मॉडल आएगा। तो थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे में दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पी टैग में हाई प्रिंट करता हूँ। यहाँ जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस हो रहे हैं, पर तो एक टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। मॉडल यूज़र डॉट ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ एक मॉडल का चेक डाल देता हूँ। मैं इसको बंद कर, यूज़र डिटेल्स वाले में जाऊँगा मैं। यहाँ पे मेरे को एक वो लिखना पड़ेगा कि किस तरह से मैं सेंड करना चाहता हूँ यूज़र को इस ऑर्डर्स वाले। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर्स वाला है तो इसको मैं इसको HREF की जगह पे डाटा HREF कर दूंगा। और ये है, ये कहाँ पे जाएगा, @url.action पे जाएगा और ये हमारा यूज़र कंट्रोलर के यूज़र ऑर्डर इंडेक्स में जाएगा। मुझे यहाँ पे एक्शन का नाम लिखना पड़ता है, व्यू का नाम नहीं लिखना पड़ता है, एक चीज़ याद ध्यान रखते हैं। यूज़र आईडी भेजूंगा पैरामीटर्स में, मैं कंट्रोलर का नाम लिख सकता हूँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये यार ये सेम कंट्रोलर का है। एक ही चीज़ डालूंगा, ऑर्डर आईडी यूज़र आईडी भेज रहा हूँ मैं इसको। यूज़र आईडी क्या हो जाएगा, यूज़र आईडी कहाँ से भेजेंगे हम लोग, यूजर आईडी मुझे पता है कहाँ से आ रहा है मेरे को। बाय द वे मॉडल ना आ रहा है, मॉडल से मैं मॉडल से उठा सकता हूँ, मॉडल से उठा देता हूँ, मॉडल डॉट यूजर डॉट आईडी मैंने डाल दिया। तो मैं इसको शिफ्ट प्लस इसको मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। यार डाटा एचआरएफ डाला है पर इसको कॉल से डालना पड़ेगा यहाँ पे ना, तो उसका कोड लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इस वाले सब में मैं एक यूजर लिंक नाम का एक मैं वो डाल दूंगा। एक मैं क्लास डालना यूजर नेम नाम का, क्लास में कितना भी सेम काम का क्लास डाल सकता हूँ, बट मेरा फर्क पड़ता है आईडी सेम नहीं होनी चाहिए मेरी। स्ट्रिंग करूंगा, सब ये करूंगा, स्क्रिप्ट टैग डॉलर क्लास नेम हो जाएगा हमारा, डॉट एक क्लिक इवेंट डालूंगा, इसमें क्लिक फंक्शन डाल दिया। इसमें क्या करूंगा मैं, ऑब्वियसली मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, var url डालूंगा। दिस मतलब वो ये वाला जो हमारा जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक एलिमेंट में डॉट एक ATR फंक्शन होता है, इससे मैं क्या पॉइंट कर सकता हूँ, डाटा HRF जो हमारा HREF की जगह पे मैंने डाला है डाटा HRF। आप राउंड का डाल सकते हैं, आप मीट डाल सकते हैं, जो डाल सकते हैं, वो जो बनना चाहिए मन का है वो आप डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। URL नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड कर दूंगा मैं, एक चेक मारना डालना जरूरी है, एंड द एंड URL नॉट इक्वल टू नल, अनडिफाइंड और एक ये ब्लैंक तो नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें मैंने डाल दिया, ये मैंने कहा दिया। इसके अंदर अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं एक लोडर शो करना चाहता हूँ। लोडर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक लोडर डालना पड़ेगा, शो लोडर डाल दूंगा मैं यहाँ पे, इस तरह से शो लोडर डाल दूंगा। और उसके बाद शो लोडर डालने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पे जब ये हमारा यूआरएल नॉट डिफाइंड होगा तब मैं इसको मूव करूंगा। तो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा यूजर लिंक है इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक रिमूव क्लास करूंगा। रिमूव क्लास में डाल दूंगा, एक्टिव क्लास को मैं रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद डॉलर दिस डॉट ऐड क्लास यहाँ पे एक्टिव। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी हमारा यूजर लिंक वाला क्लास है उसके सारे मैं एक्टिव क्लास हटा देता हूँ जिसमें भी लगे हुए होंगे, और फिर मैं जो करंट वाला एलिमेंट है उसी में को मैं ऐड कर देता हूँ। और डॉलर डॉट अजैक्स में एक कॉल भेजूंगा, इसमें मैं यूआरएल तो भेजने वाला हूँ, सिर्फ एक यूआरएल भेजूंगा। यूआरएल हमारा यूआरएल होगा। बाय द वे गेट मैं कर रहा हूँ तो गेट में मैं गेट कर रहा हूँ ना, आप देख रहे होंगे गेट कर रहा हूँ, तो HTTP गेट में मुझे ज़रूरत नहीं होती हमारा डेटा को टाइप मेंशन करने के लिए। डॉट डन फंक्शन करूँगा, रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, एक रिस्पॉन्स होल्डर नाम का भी क्लास होगा जिसमें मैं सारे रिस्पॉन्स को सेव करूँगा। ये हमारा आईडी है, इसको मैं रिस्पॉन्स होल्डर में यहाँ पे एक आईडी दे दूँगा। इस वाले जो ये हमारा HTML और रेंडर पार्सर किया है, इसको असाइन करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है वैलिडेशन वाले में भी। ये तो आईडी आ गया, तो कॉपी करूंगा, डॉट HTML फंक्शन होता है उसमें रिस्पॉन्स डाल दूंगा मैं, रिस्पॉन्स अटैच हो जाएगा। सब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना हाइड ऑर्डर भी कर दूंगा। पेज फंक्शन नहीं बना सकता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं एक एरर बना सकता हूँ, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो आप थोड़ा देख लीजिए। टू साइड का हेल्प से आप बना सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। क्लास इक्वल टू पॉइंटर डालना पड़ेगा आपको, एक ख्याल से बूटस्ट्रैप पे क्लास होती है पॉइंटर
शो लोडर इज नॉट डिफाइंड। ये कैसा मजाक है, कैसा मजाक है। शो लोडर इज नॉट डिफाइंड। क्या मैं जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा शेयर्ड वाले में, site.js लूंगा मैं और इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा और इधर में से मैं CSS उठाऊंगा। तो CSS के बाद मेरे को जानना पड़ेगा कि पहले हाई आ गया, बढ़िया हाई आ गया, पर मैंने डीबगर तो डाला ही नहीं है। डीबगर कहाँ से आ गया? देख रहे मैंने डीबगर डाला कहाँ है? डीबगर किस हिसाब से तुम दे रहे हो डीबगर? यार समझ में नहीं आ रहा मुझे। डीबगर तो मैंने डाला ही नहीं है यहाँ पे, कहीं पे डीबगर डाला है मैंने? निकाल, डीबगर डाला ही नहीं है यहाँ पे, फिर भी डीबगर दिखा रहा है। चलो ठीक है, डीबगर दिखा रहा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले पे काम करेंगे हम लोग। इस वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, नलेबल कर दे रहा हूँ मैं। इनकी वैल्यू नलेबल होगी अगर p इक्वल टू, अगर हैश वैल्यू है और तो मैंने तो फिर, वरना मैं इसको मैं 0 कर दूंगा। मैं 0 नहीं करूंगा, 1 करूंगा। गलत सजेशन दिखा रहा है मुझे। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p डॉट वैल्यू हो जाएगी। इमेज मैंने थोड़ा सा इमेज को नीचे, इमेज नहीं आ रहा है, इमेज को रहने दीजिए, इमेज किसी और वीडियोस में आने वाला है हमारा इमेज। एक यहाँ पे @model डॉट नल कर दिया, नल चेक कर दिया मैंने। एक और चेक करूंगा, मॉडल डॉट ऑर्डर, ये तो नल नहीं है। एंड मॉडल डॉट ऑर्डर डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। नल चेक कर दिया यहाँ पे। अब क्या करूंगा, हाई को हटाऊंगा। हाई को हटाने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से मैं काम करने वाला हूँ। तो एक डिव डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो इसकी क्लास डालूंगा कंटेनर फ्लूइड, रो डालेंगे और MB3 डालूंगा। बॉटम पे एक मार्जिन होगी और उसके बाद मैं एक कॉलम बनाऊंगा और उसकी कॉलम, उसकी कॉल LG12 बनाऊंगा, पूरा मैं विथ डालूंगा। और आई थिंक तो ये हमारा जो क्लास पॉइंट, ये काम नहीं कर रहा है हमारा ऊपर वहाँ पे। तो उसको पॉइंटर को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक CSS की स्टाइल डाल दूंगा। ऐसे भी कर्सर पॉइंटर एक कैलविन CSS की क्लास होती है, पर हम लोग बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप में इस तरह से मेरे को काम करना पड़ेगा। एक फॉर्म बना लूंगा। फॉर्म टैग में क्यों बना रहा हूँ, फॉर्म बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ मैं सर्च भी करूंगा तो मुझे फॉर्म बनाने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और एक और चीज मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यूजर ID स्टेटस सर्च कर रहा हूँ। ओके, स्टेटस हमारा ड्रॉप डाउन होगा मेरे ख्याल से। भाई मेरे को एक सर्च बाई सर्च स्ट्रिंग यूजर ID दे रहा हूँ मैं। स्ट्रिंग यूजर ID तो है, वैसे एक कुछ एक ऑर्डर नेम भी कुछ ऐसा आना चाहिए मेरे को, इसके थ्रू मैं सर्च कर सकता हूँ। दैट काइंड ऑफ स्टफ आल्सो यू कैन डू। उसके लिए मैं फॉर्म टैग इस्तेमाल करूंगा, पर वो भी डाल देंगे हम लोग इसी वाले वीडियो में डाल देता हूँ। वीडियो यार बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होंगी, 50-60 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसको मैं क्या करूंगा, एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डालूंगा, ऑर्डर ID डालनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। क्लास का करूंगा फॉर्म कंट्रोल, और इसका यहाँ पे हो जाएगा राइट में 1 की मार्जिन डालूंगा मैं, और यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दूंगा मैं। और ये डालूंगा मैं, क्या डालूंगा प्लेस होल्डर में, मैं भूल गया, ऑर्डर ID डाल दूंगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डाल दिया, एक नेम भी डाल दूंगा ऑर्डर ID का। इनपुट ग्रुप में ये हो गया। इसके बाद एक डिव बनाऊंगा, इनपुट ग्रुप अपेंड करूंगा, इसको डिव को बंद करूंगा। इसमें एक बटन डालूंगा मैं, सर्च का बटन डालूंगा, और स्टेटस भी आई थिंक आई हैव टू प्रोवाइड दिस स्टेटस एज वेल, तो स्टेटस का भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो पहले एक और मैं एक बटन बना देता हूँ, और ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा UR.action, आई डोंट थिंक सो। रीसेट का बटन, आई रीसेट का बटन मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, रीसेट का बटन डाल देते हैं। रीसेट का बटन भी डालना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो रीसेट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, @UR.action। अभी के लिए इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ, अभी के लिए मैं कुछ डालूंगा नहीं, इसको मैं ब्लैंक डालता हूँ, ब्लैंक रखेंगे अभी के लिए। जी यार मैं करने वाला हूँ सब कुछ, और ये भी हटा दूंगा मैं, आउटलाइन सेकेंडरी हटा दूंगा मैं, आउटलाइन सेकेंडरी चाहिए मुझे, और ये भी आउटलाइन सेकेंडरी में हटा दूंगा। 5 कॉलम D5 आई थिंक इतना हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। कॉलम D5 पे आ रहा है, ये सही है। और इसको मैं यहाँ पे सर्च रीसेट कर सकता हूँ, और मैं ऑर्डर ID से कर दूंगा। उसके पहले मैं क्या करूँगा, एक ये हमारा डिव का हो गया काम। इसके बाद में फॉर्म के बाद में जाके अब मैं सारा डेटा को प्रिंट आउट कर देता हूँ। सबसे बढ़िया ये रहेगा, आपका चिपका देंगे यहाँ पे। और एक टेबल क्लास यहाँ से उठा लिया मैंने, टेबल हो गया। और टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, मेरा ऑर्डर ID आएगी। ऑर्डर ID के बाद प्लेस ऑन डेट मैंने किया नहीं है, ऑर्डर अमाउंट कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने किया नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेंगे। मैंने नहीं किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऑर्डर अमाउंट हो जाएगी, और उसके बाद स्टेटस आ जाएगा, और दूसरा क्या है, एक्शन नाम का, ठीक है।
ये एक्शन वाला आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, इस बारे में नहीं कवर करने वाला। टीआर एक टीआर रखूंगा, बाकी टीआर को मैं डिलीट करूंगा, फॉर ईच करूंगा, वार आइटम इन मॉडल डॉट ऑर्डर, और इसको क्या करूंगा मैं, टीआर टीएच ही करना पड़ेगा मुझे, टीआर करना पड़ेगा, टीडी करनी पड़ेगी, आई थिंक टीडी होती है एट द रेट, क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 आइटम डॉट आईडी हो गई, आइटम डॉट क्या है, स्टेटस है, मोड ऑफ पेमेंट है, टोटल अमाउंट है, और एट द रेट आइटम डॉट स्टेटस हो गया। ट्रैक का बटन बनाना पड़ेगा, तो मैं एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे। बटन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, btn ट्रैक कर दूंगा और इसकी क्लास डाल दूंगा। इतना हो गया, रिफ्रेश करता है, ठीक है। ऑर्डर्स इस तरह से मैं कर सकता हूँ, और ये एक्शन है, और ये टीडी, ये ट्रैक किस तरह से क्यों आ रहा है, ओके, एक एंकर टैग बना लूंगा, उसमें मैं ये डाल दूंगा, और ट्रैक को हटा के अब मैं ट्रैक कर दूंगा, तो मेरा डेटा सही से आ जाएगा मेरे ख्याल से। ट्रैक बटन आ रहा है और स्टेटस पेज दिखा रहा है, ऑर्डर आइटम दिखा रहा है। ऑर्डर आइटम को मैं सर्च करने के लिए मेरे को यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, उस पर भी काम करेंगे हम लोग, अभी इस सेशन में कर लें काम। अभी क्या करेंगे, इंडेक्स वाला जो पेज बनाया था, ये ऑर्डर का डिस्प्ले कर रहा था, इसमें क्या करूंगा मैं, पेजिनेशन भी डाल देते हैं। पेजिनेशन किस तरह से मैं पेजिनेशन डालूंगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि इमेजेस जो है उसको कुछ सॉल्यूशन बताइए, ताकि इमेज जब तक लोड ना हो तो एक लोडर काइंड ऑफ स्टफ इमेजेस में दिखाए। तो एक लाइब्रेरी होती है इमेजेस लोडेड वाली, उसको यूज करेंगे। उसका डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हैं, पर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि यार उनके डॉक्यूमेंटेशन में मैंने खुद देखा यार, मुझे एक चीज बहुत ही अजीब लगी यार, डॉक्यूमेंटेशन में ठीक से दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आपको समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, अरे कहना क्या चाहते हो आपको। तो उसके लिए मुझे अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, उसका वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊं, बहुत लोगों ने कमेंट किया इसलिए। और ये जो वीडियोस हो रहे हैं ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं यार इसके सीरीज क्यों नहीं आ रही है, कुछ दिनों से, कुछ हफ्ते से ये सीरीज नहीं आ रही है, बाकी वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वाला रीजन यही है कि स्टॉक में था नहीं, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो अभी इस पे काम करेंगे। अभी क्या ना, ये हमारा टेबल रिस्पॉन्सिव है, ये इतना सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा काम करते हैं, जुगाड़ टाइप का काम करूंगा मैं, ठीक है, जुगाड़ टाइप का काम करूंगा। डेटाबेस में ओपन करूंगा, डेटाबेस से यहाँ से मैं कुछ टेबल्स में जाकर, हाँ लोड हो रहा है, थोड़ा लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है। और हमारा ऑर्डर्स है, ऑर्डर आइटम है, ऑर्डर्स को मैं ओपन करूंगा, व्यू डेटा करूंगा, और जब तक ये ओपन हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स को भी व्यू डेटा को मैं ओपन कर दूंगा। दो चीजें मैंने ओपन कर दी, ये ओपन है, ऑर्डर्स है, ठीक है। आप चेक कर रहे हैं, और भाई ऑर्डर ऐड भी है मेरे पास, तो ये सही है। ऑर्डर ऐड में दिखा सकता हूँ कब मैं ऑर्डर ऐड कर रहा हूँ, तो ये कॉलम मेरे पास है, इट्स अ बेनिफिट, ठीक है ना। बाकी मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी कहाँ है, 1, इसको कॉपी करता हूँ मैं, बाकी इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। यार ये क्या है यार, ये तो गड़बड़ हो गया है, इसको कॉपी करके रखना पड़ेगा यार, ये तो बहुत SQL सर्वर में ये करूंगा, और इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 3 प्रोडक्ट्स बना लूँ, ताकि मुझे लेटर ऑन प्रॉब्लम ना हो। तो 12 AM काइंड ऑफ स्टफ दिया हुआ है, मैं इसको 11 कर देता हूँ, और उसको मैं 29 कर देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेड कर दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या डाल देता हूँ मैं, कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ, 200 डाल देता हूँ, 200, ठीक है। और ये भी रेजर पे ही है, चलो ठीक है, रेजर पे ये है, ठीक है। एक ही डल गया, तो इस वाले में भी डाल देता हूँ मैं। ऑब्वियसली गलत मैंने डाला है, तो मेरा प्राइस में रैंडम डाल रहा हूँ, तो गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ इन द सेंस कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। ये हमारा 5वां आईडी है भाई, स्ट्रेंज, मुझे 5 आईडी दिया, मैंने 2 आईडी नहीं दिया, ठीक है ना, 5 आईडी दिया। ऑर्डर आईडी यहाँ पे 5 करूंगा, प्रोडक्ट आईडी में 9 करूंगा, और क्वांटिटी में 1 करूंगा। एक आईडी आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कॉपी किया था, मैंने ये वाला कॉपी किया था भाई। एक टाइम पे सेम बंदा ऐड कर सकता है, ऑब्वियसली कुछ कर सकता है। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, इसको लेट्स गिव इट 30 कर देता हूँ मैं इसको, और को भी पेंडिंग कर देता हूँ, स्टेट की भी 200 कर देता हूँ, और मोड ऑफ पेमेंट COD कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू 6 है, क्वांटिटी 1, ऑर्डर आईडी 6, और ये 14। एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये क्या है एक TR है बाहर, TR हमारा बाहर होगा, आप चेक कर सकते हैं।
टी आर हमारा कहाँ पे होगा, फॉर ईच के अंदर एक टी आर होगा और उसके अंदर मैं टी डी करूंगा, ठीक है ना। टी डी एक कॉलम है, टी डी एक स्टार्ट देखें, टी डी यहाँ पे बंद हो रहा है और ये टी आर मेरा कहाँ पे होगा, टी आर मैंने कहाँ पे डाला, फॉर ईच के अंदर टी आर डाला, आप देख सकते हैं ना, फॉर ईच के अंदर टी आर डाला है मैंने, हाँ फॉर ईच के अंदर टी आर डाला है मैंने, सेव कर दिया, ठीक है सेव हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं डेटा किस तरह से आएगा। यूआई का मैंने गड़बड़ कर दिया था, दैट्स द अदर थिंग। रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, मेरा डेटा आ जाएगा। भाई इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या, लेट मी चेक इंटरनेट इशू, आई होप इट वर्क्स। देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया 651 में ऑर्डर बाई किया है ना मैंने, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूँ जो पहले आ रहा है, ये ट्रैक ये सब सही हो गया। अब इसके बाद मुझे पेजिनेशन डालना है, तो पेजिनेशन का कोड यहाँ से फटाक से लिख लेते हैं, ठीक है ना, पेजिनेशन वाला कोड लिखते हैं। पेजिनेशन का कोड के लिए मैं क्या करूँगा, what I would suggest, I will go with pagination, class justified content, that kind of stuff we will be covering here। ये बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एक काम करता है, मैंने मॉडल को असाइन नहीं किया, ये पेजर को असाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ से एरियाज में कंट्रोलर्स में जाके प्रोडक्ट कंट्रोलर में अगर जाऊँ मैं, चीज होती है यहाँ पे मॉडल डॉट पेजर वाला, जो मैंने की नहीं है, और ये पेज आएगा, पेज की जगह पे मेरा पी वैल्यू है तो मैं पी डाल रहा हूँ, पी डॉट वैल्यू कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे जाऊंगा यूजर कंट्रोलर में, रिकॉर्ड साइज अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 रख रहा हूँ, ठीक है। रियल टाइम सिनेरियो में ज्यादा लिखूंगा, पर मैं थोड़ा सा काम करूंगा, यहाँ पे डिफ डाल सकते हैं, डिफ कॉलम D5, ठीक है। एक रो भी डालूंगा और कॉलम D5 करूंगा मैं, ये आप देख सकते हैं टेबल रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद मैं यहाँ पे इस चीज को पेस्ट कर दूंगा और साथ में एक रो भी डाल देता हूँ। एरर आ रहा है, ये एरर कहाँ से रहा है, किस चीज में एरर है, दिखाता हूँ मैं, देखता हूँ, एट द रेट, ठीक है ना, ये एट द रेट ट्यूआर एक्शन में जो चीज़ है, इसको अभी मैं चेक कैसे आते हैं यार, कैसे आते हैं, शिफ्ट से, अभी एरर चलेगा, ठीक है ना, एरर चला गया। इसको मैं सेव करूंगा, अगर मैं इसको बिल्ड करूं, ठीक है, अभी के लिए कुछ करूंगा नहीं, बिल्ड करके मैं देखना चाहता हूं कि मेरा पेजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करूंगा पहले। पेजर आ गया तो फिर उसके बाद मैं बटन डालूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे इन्फिनाइट स्क्रॉल वाला डाल सकते हैं कि डाल सकते हैं, मैं jQuery में इतना कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि jQuery में अब jQuery बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो jQuery का मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, बोल भी नहीं रहा jQuery आप इस्तेमाल करें, आप यूज करना है तो आप बाकी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप React.js यूज कर सकते हैं, आप Next.js यूज कर सकते हैं, आप Angular यूज कर सकते हैं, आप Vue यूज कर सकते हैं। It's a time to switch to other frameworks, like if you want to work with some JavaScript frameworks या library बोले, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अब ASP.NET Core का रेजर पेजेस क्या आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, करने कर सकते हैं, बट दैट्स अदर थिंग। आप ASP.NET Core के वेब APIs का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वो, आप क्योंकि वेब API के लिए आपको कुछ नहीं यूज करना पड़ेगा, या तो आप Next.js यूज करें जिसमें आपको वेब APIs भी मिल रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं जहाँ पे आपको देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये मेरा इस तरह से बन के आ रहा है। ऑब्वियसली लिंक में थोड़ा सा, ये लिंक वाला मैं सही कर दूंगा, ठीक है, लिंक वाला सही करता हूँ। ये कहाँ पे जाएगा, पहले तो जाएगा कहाँ पे, ये वाले, ये इसी के यहाँ पे जाऊंगा और ऑर्डर इंडेक्स पे जाएगा, इसके ऑर्डर इंडेक्स पे जाएगा, और इसको मैं ये डालने की जरूरत नहीं है, मुझे कंट्रोल एच करूंगा, करंट डॉक्यूमेंट करूंगा, हटा दूंगा और फिल्टर ऑर्डर कॉपी करता हूँ, इसको एफ करता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, करंट डॉक्यूमेंट करूंगा। इसके बाद न्यू में पैरामीटर में क्या भेजना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एक तो यूजर आईडी भेजना चाहता हूँ और दूसरा हमारा स्टेटस भेजना चाहता हूँ, और मैं पी भेजना चाहता हूँ, पेज नंबर। स्टार्ट करते हैं, यूजर आईडी भेजेंगे सबसे पहले। पहले मैंने ऑर्डर आईडी भेजा नहीं है, ऑर्डर आईडी भी भेजना है मुझे, ठीक है, वहाँ पैरामीटर ले लूंगा। यूजर आईडी कहाँ से होगा, एट द रेट मॉडल डॉट यूजर आईडी, इस तरह से भेजूंगा ना, बिना उसके भेजूंगा, ठीक है। और फिर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, पहला वाला ही कॉपी कर रहा हूँ ना, इक्वल टू बाई पी इक्वल टू, साथ में मुझे क्या भेजना है, मुझे एक स्टेटस भेजना चाहता हूँ, ऑब्वियसली स्टेटस भी भेजना चाहता हूँ, तो मैं स्टेटस भेजूंगा। स्टेटस कहाँ से आएगा, स्टेटस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडल डॉट स्टेटस में भेज रहा हूँ, हाँ मॉडल डॉट स्टेटस भेज रहा हूँ मैं, तो स्टेटस भी भेज देता हूँ मैं। तो पहले मैं ये इधर से कॉपी करता हूँ, यार देखो यार, देखो कट्टे से चला जा रहा है, गुस्सा आती है जब ये ऐसा होता है। ये हो गया,
इसके बाद में पेज नंबर इस वाले में करूँगा, दूसरे वाले में पेज ही आएगा। तो दूसरे वाले में पेज आएगा p इक्वल टू, बाकी मैंने ये पेजिनेशन का कोड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ पेजिनेशन का कोड? अब कुछ लोग पूछेगा पेजिनेशन का कोड का ही नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो तुम। इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है। अब इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा तो रिपीटेशन हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा एक ऑडियो में थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ क्या क्या किया क्या मैंने यहाँ पे। मॉडल पेजेस पे देख रहा हूँ, नल तो नहीं है और टोटल पेजेस ग्रेटर देन 1 है। अगर मॉडल पेजर हमारा जो है, जो करंट पेज है, तो मतलब जो अभी का पेज है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 से ज़्यादा है भाई, वही 1 से ज़्यादा ही है। तो उसमें क्या होगा, मेरा क्या कर सकता हूँ मैं उसको पीछे वाले पेज में जा सकता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है लेफ्ट का, ठीक है। स्टाइल मैंने कर्सर पॉइंटर डाला है तो ठीक है। कहाँ पे जाएगा? ऑर्डर इंडेक्स में जाएगा। यूजर आईडी क्या होगी? मॉडल यूजर आईडी जो आ रही स्टेटस भी उस तरह से आ जाएगा। अब हमारा पेजर क्या होगा? मॉडल पेजर डॉट करंट पेज, तो करंट पेज है ऑब्वियसली उसका -1 होगा। और मैं जब ऐड अब हमारा जो नेक्स्ट वाला होगा, नेक्स्ट वाले में पेजेस में क्या होगा, जो मॉडल पेज और करंट पेज होगा वो लेस देन होगा हमारा मॉडल पेज डॉट टोटल पेजेस। अगर लेस देन क्यों होगा? तभी तो मेरा नेक्स्ट का बटन आएगा। थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है, थोड़ी सोचने वाली बात है, तभी हमारा नेक्स्ट का बटन आएगा। नेक्स्ट के लिए क्या करूंगा, सिर्फ पेजर को मैं मॉडल डॉट पेजर डॉट करंट पेज को एक से ऐड 1 प्लस 1 कर दूंगा, तब हमारा पेजर एक से। अब हमारा बीच वाले सारे पेजेस के नाम किस तरह से फाइंड करूंगा, ठीक है, उसके लिए कोड देख। पेज को मैंने क्या किया, मॉडल पेज डॉट स्टार्ट पेज, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, पेज लेस देन इक्वल टू मॉडल पेज डॉट एंड पेज। एंड पेज जो है उससे लेस देन होगा। अब पेज को ऑब्वियसली मैंने प्लस प्लस कर दिया। अब एक्टिव क्लास में किस तरह से फाइल करूंगा, मॉडल पेज और करंट पेज इक्वल टू अगर पेज है अभी जो स्टार्ट पेज पे, तो वो एक्टिव बीजी इन्फो दिखाएगा। नहीं तो फिर मैं उसमें क्या करूंगा, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। एक चीज है, अगर वो करंट पेज इक्वल टू हमारा पेज है, पेज डॉट स्टार्ट पेज है हमारा जो है, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह से पेजेस डालूंगा, और मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा पेज अगर इक्वल टू पेज है, अभी का पेज है, तो मैं उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे पेज डाल दूंगा। और ये पेज डाटा लिंक डाला है और पेज लिंक डाला है, ठीक है। अब पेज ये सब थोड़ा बहुत क्लासेस हैं। अब ये हो गया, इसको सेव करता हूँ मैं। पेज डाटा डालो क्लिक फंक्शन डाला है, जैसे href गेट डेटा व्यू आ रहा है। रिमूव क्लास प्लस कुछ नहीं करूंगा मैं, इसको रोलर करूंगा। एक्टिव भी नहीं करूंगा मैं, कुछ नहीं करने वाला। एक्टिव वो मैं हैंडल करूंगा यहाँ से, रिस्पॉन्स होल्डर और ये कर दूंगा मैं इसमें, ठीक है। आई होप दिस टाइम इट वर्क्स। यार कुछ करना पड़ता है इस तरह से यार, मुझे आइडिया नहीं आ रहा, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा आज यार, पता नहीं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। डीबगर यहाँ पे किस तरह से आ गया, और ये कहाँ से आ गया यार, मुझे डीबगर मैंने डाला ही नहीं है फिर भी डीबगर आ रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आ गया, देखो यहाँ पे काम कर रहा है, काम कर रहा है, पेंडिंग है, ये देखो काम कर रहा है। ऑर्डर आईडी भी डाल देते हैं यहाँ पे, भाई मैंने स्टेटस भी नहीं डाला है, स्टेटस पे भी काम नहीं किया, ऑर्डर आईडी पे भी काम नहीं किया। तो ऑर्डर आईडी और स्टेटस पे काम कर ले, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी भी भेजूंगा। ऑर्डर आईडी भी भेज रहा हूँ, तो मैं इस वाले व्यू मॉडल में जाऊंगा, एक ऑर्डर आईडी भी भेजूंगा। भाई ऑर्डर आईडी हमारा स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है, तो इसको इंटीजर करना पड़ेगा मुझे। भाई आपको ऑडियो सुनाई दे रही होगी, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा तेज बोल नहीं रहा हूँ, तो मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूंगा अभी। मॉडल ऑर्डर आईडी, हमारा जो ऑर्डर आईडी है उसको मैं किस तरह से कर दूंगा, इक्वल टू हमारा ऑर्डर आईडी जो है। भाई यार ऑर्डर आईडी यार, देखा यार तुम, ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, या अभी स्टेटस की जगह पे मैं ऑर्डर आईडी भेजना चाहता हूँ ऑर्डर आईडी। मैं स्टेटस के बाद में एक ऑर्डर आईडी भेजूंगा, और इसको मैं एक ऑर्डर आईडी भेजूंगा, और इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट करूँगा ऑर्डर आईडी। यहाँ पे एक और इंटीजर में ऑर्डर आईडी करना पड़ेगा, इंटीजर ऑर्डर आईडी हो गई ना। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी को हैश वैल्यू, ठीक है, ऑर्डर आईडी स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है, तो इंटीजर इफ ऑर्डर आईडी करके कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से कर सकता हूँ। स्टेटस अगर आ गया इसके बाद में कर देता हूँ। यार एक चीज़ करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, इसको नलेबल करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी नलेबल होगी, ये ऑर्डर आईडी हमेशा नहीं आ रही है हमारी, इसको भी नलेबल हो। यहाँ पे मॉडल में जाऊँगा,
मॉडल में इसको भी नलेबल कर दूंगा। ऑर्डर आईडी नलेबल होने वाली है हमेशा। इफ ऑर्डर आईडी डॉट हैज वैल्यू, अगर वैल्यू है, अगर उसके ऑर्डर आईडी में वैल्यू है तो क्या करूंगा यार, तुम का यार, तो यार सीरियसली यार पता नहीं यार, ये थोड़ा सा जो चाहिए वो नहीं आता है। ऑर्डर डॉट वेयर एक्स डॉट आई डी इक्वल टू ऑर्डर आई डी डॉट टूल कर दूंगा। इस स्टेटस के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, और स्टेटस के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स फाइन। इतना हो गया। वहाँ पे जाएंगे सर्च में, ठीक है ना, सर्च वाला ऑर्डर आईडी हमारा यहाँ ऑर्डर आईडी आएगी और इसका नेम यहाँ पे है। ऑब्वियसली जब मैं सर्च करूंगा, सर्च में मुझे पहले तो एक चीज करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे सर्च वाले को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि मैं सर्च भी कर रहा हूँ। सर्च का ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने कवर कराया है ये फिल्टर वाले प्रोडक्ट्स वाले शॉप पेज पे। अगर वो फॉलो नहीं किया तो वो वाले वीडियो जरूर देखा है, क्योंकि यार उसमें बहुत कुछ कवर किया है मैंने। एक एक मतलब एक्सप्लेन नहीं, तो धीरे 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 हौले हौले कर करके मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। सर्च यूआरएल इनपुट टाइप इज इक्वल टू रिटर्न सर्च यूआरएल, वैल्यू भी डाल दूंगा यहाँ पे मॉडल ऑर्डर आईडी। इतना हो गया। अब ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू सेलेक्ट हो जाएगा, और बटन हमारा हमेशा जो बटन जो होता है वो हमारा टाइप बटन होगा। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अच्छा इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, मैंने बटन ही डाल के रखा है। ठीक है, सबमिट पेमेंट डाला ही नहीं है, चलो चलो ठीक है, बटन से कर दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वो उससे बड़े कर सकते हैं आप। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आप दे सकते हैं सर्च आई डी, ये एक्शन बटन डाल के रखा, आई डाल देता हूँ एक में एक्शन बटन। वैसे मैंने एक्शन बटन कुछ इसे डालने रखा नहीं है मेरे ख्याल से, तो मुझे यहाँ पे एक्शन बटन डालना पड़ेगा। यहाँ पे बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, ठीक है, टाइप बटन टू बटन, बटन सही, चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ मैं इसको। ठीक है, अब फॉर्म टैग के अंदर पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली फॉर्म टैग के अंदर पड़ा हुआ है। एक्शन बटन डॉट क्लिक फंक्शन डाल दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक फंक्शन डाला हुआ है। इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसको शो लोडर डाल सकता हूँ, मैं शो लोडर डाल लूंगा पहले इसको मैं। डॉट डन फंक्शन में हाइड लोडर कर दूंगा, तो यहाँ पे डॉलर डॉट अजाइज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। बाकी यूआरएल डाल देता हूँ मैं, डाटा होगा, और टाइप क्या है, टाइप कुछ डालूंगा भाई, गेट है, गेट में क्या टाइप डालूंगा, कुछ डालूंगा नहीं, डालूंगा डेटा में, समझा, डेटा में गेट पर नहीं डालता मैं। सिस्टम डॉट वैल डेटा में, सिस्टम डॉट वैल क्यों किया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट वैल, यहाँ पे तो हमारे सिस्टम को उठाएगा ना, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, कहाँ पे सिस्टम जो है ना यहाँ पे, पर हमारा सिस्टम तो है नहीं, हमारा तो ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी डॉट वैल कर दूंगा मैं, डॉट डन करूंगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा उसमें क्या करूंगा मैं, रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो हाइड लोडर करूंगा मैं। उसके बाद में क्या करने वाला हूँ, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसी को मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, रिस्पॉन्स होल्डर, और यूआरएल में हमारा क्या आएगा, यूआरएल में क्या होगा हमारा, सिस्टम जब मैं भेज रहा हूँ तो मैं कुछ पेजिनेशन कुछ नहीं देखूंगा, @ एक्शन करूंगा मैं, यहाँ पे मैं एक्शन का नाम डालूंगा हमारा जो ऑर्डर इंडेक्स है। डेटा में ऑलरेडी भेज रहा हूँ मैं, तो डेटा में भेज रहा हूँ तो ऑर्डर इंडेक्स भेजूंगा, कुछ नहीं भेजने वाला। डेटा स्टेटस भेज रहा हूँ, स्टेटस पे तो कुछ नहीं भेजूंगा मैं, सर्च कर रहा हूँ तो मैं स्टेटस भेजूंगा, ऑब्वियसली मैं स्टेटस ही भेजना चाहता हूँ। स्टेटस डॉट न्यू करता हूँ मैं, मॉडल डॉट स्टेटस अगर है तो भेजूंगा मैं, वरना नहीं भेजूंगा। और यूज़र आईडी, ऑब्वियसली यूज़र आईडी भी भेजना चाहता हूँ मैं, यूज़र आईडी तो भेजूंगा यार, बिना यूज़र आईडी किस तरह से होगा। ये हम लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ पे डाल के नहीं रखा है यूज़र आईडी को, अगर नहीं भेज रहा है तो मैं अपना लॉगिन यूज़र आईडी से उठा के ले लूँगा, वो भी कर सकता हूँ। करने के तो बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, पर मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। पेज नहीं भेज रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश करूंगा, डेटा आएगा मेरा। बाकी यार कुछ चीज़ें आने वाली है हमारे चैनल पे, तो पहले बता देता हूँ। मैं फोकस कर रहा हूँ कि मशीन लर्निंग और एआई के बहुत सारे वीडियोस बनाऊं और उस पर काम करेंगे, तो उसके हम लोग फोकस करेंगे। मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, एज्योर के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सीरीज हैं उस पर फोकस करें तो वो भी आएगा। नेक्स्ट जेएस की करेंगे, नेक्स्ट जेएस का भी करूंगा। एंगुलर की सीरीज भी चलने वाली है, मतलब उसके वीडियो शूट हो रहे हैं,
बाकी जो मेरा फोकस होगा मेन मशीन लर्निंग एआई वाले में, और हमारा एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, और हमारा पाइसपार्क हो गया, डाटाब्रिक्स हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग यही स्टार्ट किए थे एजोर डाटा फैक्ट्री की सीरीज से। फिर हमारा बाकी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं। ये डीबगर क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, और नो डीबगर क्यों आ रहा है। ऑर्डर आईडी कौन डालेगा, डेटा में इस तरह से भेजूंगा, एक एक करके भेज रहा हूँ। डेटा में क्या भेज रहा हूँ, हाँ भाई एक और चीज़ है ना डेटा में, भाई एक चीज़ है जो मैं भेजना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला कहाँ है, मैं ऑर्डर आईडी भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, बताना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे उसको। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। मैंने उसको बताया नहीं ना, मैं वो क्या भेज रहा हूँ, मैं उसको क्या भेजा है, एक ऑर्डर आईडी भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, तो उसके उसके वजह हो सकता है वो कंफ्यूज हो गया हो, कंफ्यूज आ गया हो। भाई अब हो जाना, लाज रख लेना, हो गया, हो गया, इज्जत, इज्जत बच गई, हो गया। अब रीसेट का भी कर दें कि रीसेट का आपके लिए रखते हैं, अगर मैं खाली भेजूंगा यहाँ पे, खाली भेजने में आ रहा है, पर रीसेट का भी कर देते हैं, रीसेट का भी कर लेते हैं यहाँ पे। हमारा जो पेज डेटा लिंक है ना, इसी को इस्तेमाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। रीसेट का बटन पड़ा हुआ है ना, डेटा है सिर्फ, ठीक है। क्लास कहाँ पड़ा हुआ है, इसका भी एक क्लास पड़ा हुआ है। बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैंने डीबगर डाला नहीं है तो डीबगर लग कैसे रहा, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। 5 पे करूंगा, सर्च पे करूंगा, रीसेट करूंगा, ठीक है ना, आ रहा है ना। 6 पे करूंगा, आ रहा है, रीसेट पे करूंगा, चला गया। यहाँ पे करूंगा, अगर मैं 5 पे करूंगा, सर्च करूंगा, एक ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एक ही आईडी आएगी, तो मैं उसमें पेजिनेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ होगा, हो सकता है अगर मैं, इंटीजर है ना, तो कंटेन्स नहीं डाला है मैंने, इक्वल टू डाला है। कंटेन्स वाले में स्ट्रिंग में होता था, तब क्या होता है, अगर वैल्यू अगर इस तरह से अगर 5 किसी में भी आ रहा है तो वो आ जाएगा, तो उस केस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने वाले थे, इस वाले में नहीं है। बाकी यार ये इन्फो वाला हो गया, ऑर्डर्स वाला हो गया। अगले वीडियो में पासवर्ड चेंज जानेंगे या फिर कमेंट्स वाले में जानेंगे, और अवतार में भी जानेंगे किस तरह से अवतार बनाएंगे, और यहाँ पे एक अवतार बना के दिखा देंगे। एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर दिखा देता हूँ कि छोटे में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर्च का इधर से इस तरह से है, और अब यहाँ पे इतना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया है कि नहीं, आप कमेंट करें किस तरह से लग रहा है ये सीरीज। बाकी एंडिंग में है, कमेंट्स बता दूंगा। इन्फो हो गया, ऑर्डर्स हो गया, कमेंट्स, पासवर्ड चेंज और अवतार। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।